ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 14 वर्स 1। इसका एक्चुअली वर्स बहुत बड़ा है, हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। When King Parikshit asked Sukadeva Goswami about the direct meaning of the material forest, Sukadeva Goswami replied as follows: My dear king, a man belonging to the mercantile community Vanik is always interested in earning money. Sometimes he enters the forest to acquire some cheap commodities like wood and earth and sell them in the city at good prices. Similarly, the conditioned soul, being greedy, enter the material world for some material profit. Gradually, he enters the deepest part of the forest, not really knowing how to get out. Having entered the material world, the pure soul becomes conditioned by the material atmosphere, which is created by the external energy under the control of the Lord Vishnu. Thus, the living entity comes under the control of the external energy, Daivi Maya, living independently and bewildered in the forest. He does not attain the association of devotees who are always engaged in the service of the Lord. Once in the bodily conception, he gets different types of bodies, one after the other, under the influence of material energy and impelled by the modes of material nature, Sattva gun, Rajogun, Tamogun. In this way, the conditioned soul goes sometime to the heavenly planet, sometime to the earthly planet, and sometime to the lower planet and lower species. Thus, he suffers continuously due to different types of bodies. These sufferings and pains are sometimes mixed, sometimes they are very severe, and sometimes they are not. These bodily conditions are acquired due to the conditioned soul's mental speculation. He uses his mind and five senses to acquire knowledge. These bring about the different bodies and different conditions. Using the senses under the control of the external energy, Maya, the living entity, suffers the miserable conditions of material existence. He is actually searching for relief, but he is generally baffled, although sometimes he is relieved after great difficulty. Struggling for existence in this way, he cannot get the shelter of pure devotee who are like bumblebees engaged in loving service at the lotus feet of Lord Shri Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा। तुम देखते हैं इसमें जो भागवतम का ये 5th कैंटो का चैप्टर नंबर 14, इसका वर्स नंबर 1 है। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें लिविंग एंटिटी है जो जीव आत्मा है, उनकी दुर्दशा के बारे में बताया जा रहा है कि जीव आत्मा हालांकि एक्चुअली भौतिक संसार में गिरी क्यों, है ना? अगर गिरी भी तो क्यों गिरी? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या जरूरी है जीवात्मा को यहाँ गिरने का, मतलब नहीं गिरी होगी ऐसे ही हम रैंडम, एक्चुअली क्या जरूरी है? तो हमारे शास्त्र का उदाहरण देते हैं, शास्त्र में है, और हमारे जितने भी वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे षड गोस्वामी आया ना, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इन सब चीजों मेंशन कर रखा है कि जीवात्मा भगवान के धाम से गिरती क्यों, वैकुंठ से क्यों गिरती है। वो एक्चुअली क्यों होता है? क्रोध के कारण, द्वेष के कारण। सबसे पहले तो द्वेष आता है, क्रोध तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 पे द्वेष आता है। हम ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं कि अरे भगवान से जेलसी कर लेते हैं। तो जब जब भगवान से हम जेलसी करते हैं तो तब तक हम गिरते हैं। तो कोई कह सकता है कि यार हमें कितनी बार गिरे हैं फिर भौतिक संसार में, मतलब कुछ एक टाइम अमाउंट ड्यूरेशन तो कुछ तो होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ जैव धर्म है उसमें वो बताते हैं पूरा कि इट्स अ टाइम इमेमोरियल। आप ये नहीं बता सकते देख के कि जो सूर्य है वो कब निकला, है ना? कोई ये नहीं बता सकता कि सूर्य का जन्म कब हुआ ना, और कोई ये नहीं बता सकता सूर्य का अंत कब हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी नहीं बता सकते जीवात्मा के केस में कि जीवात्मा भगवान के धाम से कब गिरी और कब जाएगी। ये डिपेंड करता है जीवात्मा के एफर्ट पे, उसके अपने प्रयास पे, और साथ में कृपा पे, क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है कृपा पे चलता है ना। इस केस में ये चीजें हो सकती है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भौतिक संसार के बारे में पूछते हैं, फिर कि क्या भौतिक संसार के बारे में कुछ बताइए। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भौतिक संसार इट्स लाइक अ जेल, ये एक जेल की तरह, एक प्रिजन की तरह है। जिस प्रकार से कोई जेल में एक कैदी अपनी सजा भुगतने के लिए जाता है, और जब सजा की घड़ी जब समाप्त हो जाती है, फिर वो कैदी अपने घर को वापस लौट चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा का भी केस है। जीवात्मा भी इस संसार में केवल सजा भुगतने के लिए आती है, और जैसे उसका सजा पूरा हो जाता है, जो जो उसको पनिशमेंट मिलनी होती है, वो मान लेता है भगवान को कि आप ही परम पुरुषोत्तम है और मैं आपका दास हूँ। जब ये केस अगर हो जाता है तो जीवात्मा भी फिर भगवान के धाम, अपने घर जो वापस अपना घर है
शाश्वत जो घर है अपना वहां पे चले जाते हैं। वेदर ये मैटर नहीं करता कि जो कैदी है उसको जेल में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है या ना मिल रही हो, है ना, उसे कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई ये कैदी ये सोच ले कि भाई मैं जेल से निकलूंगा नहीं क्योंकि यहाँ तो अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, आज रूम नंबर 10 में हूँ, कल ट्रांसफर होकर रूम नंबर 2 में चला जाऊंगा, वहां पे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है मेरे को, तो ऐसे कैदी को आप क्या कहेंगे? इसको समझदार कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे? तो क्या आप समझ जाओगे इसके, ऐसे लोग हम कहेंगे बेवकूफ, क्योंकि हालांकि है तो व्यक्ति जेल में, चाहे उसको कितनी फैसिलिटी मिल जाए, है तो जेल ही में, जो अपने फैमिली में वापस रिटर्न जाएगा तो बात अलग हो। ठीक उसी तरीके से भौतिक संसार में हो सकता है जीवात्मा को देख के लगे भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये इसके पास ये है, उसके पास वो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली यही फिक्स होना चाहिए कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद जी हमेशा कहा करते थे कि जो मनुष्य जो है ना, अगर हरि कथा का श्रवण करते हुए और बांटते हुए, खाली करने की नहीं बात है क्या हम बस खुद ही कर रहे हैं, श्रवण करते हुए और दूसरों को प्रचार करते हुए, अगर ये करते हुए जीवन झरता है, जीवन गुजरता है, शरीर झरता है, अगर ये करते हुए चीजें हो रही है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद कहते हैं कि ऐसा शरीर महान है, पवित्र है। हो सकता है कि कुछ समय तक चीजें क्योंकि हमारे पिछले कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, है ना, कुछ चीजें होती है कि हमारे गलत कर्मों का हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हमारी पुरानी जो आदतें दोबारा से हावी हो जाती है हम पे, मतलब मान लो क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, लेकिन एक ही बार कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, फिर आदमी क्रोध कर देता है ना। ठीक इसी तरीके से हर चीजें होती है, जैसे काम वासना है, आदमी सोचता है काम वासना करनी है, हम जितना उसको दबाने की कोशिश करते हैं उतना बाहर निकलता है। इस केस में क्या, इस केस में एक ही काम हो सकता है, सिर्फ हम उस सिचुएशन में शांत रहना चाहिए और अपने पे काम करते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कब तक करते रहेंगे, टिल द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक जीवन है तब तक करते रहो, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये एक्चुअली क्या चीज होती है, ये जो गुस्से के, काम के, क्रोध के, लस्ट के, एंगर के, ग्रीड के, ये सब के जो रूट कॉज होते हैं ना, जड़ें जो होती है बड़ी मजबूत होती है। जैसे कोई पेड़ की अगर जड़ बड़ी मजबूत होगी ना तो पेड़ गिरता नहीं है जल्दी, इनकी भी जड़ें बड़ी मजबूत होती है। गंदी आदतों की जो जड़ें है ना बड़ी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि हिला के तो निकले, उखाड़ते हैं तभी भी नहीं निकलता, इतनी मजबूत होती है इन सबकी जड़ें, है ना। तो इस केस में हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको कंट्रोल पा सकते हैं। अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कंट्रोल पाके किस तरीके से, और कंट्रोल कब पाएगा, जब आदमी कोई भक्ति का प्रोसेस करेगा और जो नियम दे रखा है, रूल रेगुलेशन, अगर वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा इस चीज का। क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने पूरे संसार पर नियंत्रण कर लिया लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने इसका मतलब कहीं भी नियंत्रण नहीं किया, है ना। इफ अ पर्सन रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ही कैनॉट कंट्रोल ऑन हिज माइंड, देन ही इज नॉट अ गुड, देन दैट्स नॉट अ गुड डील। ये अच्छा बिना डील नहीं है, फिर ये तो बेकार डील होगा बिना डील, है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीजें जो है एक्चुअली समय समय पर धीरे धीरे करते करते, ग्रेजुअल प्रोसेस करते करते, हम जरूर एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब हम सुधर जाएंगे। लेकिन हमारा मेन जो मोटिव, प्रयास पता है होना चाहिए, एफर्ट क्या होना चाहिए कि हमारी जो साधना है उसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी भी। कभी कभी क्या होता है, हम भक्ति में तो आ जाते हैं लेकिन साधना से हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, मतलब माला हम कम कर देंगे, बहाने देने लगेंगे, है ना, सुनना कम कर देंगे, प्रचार करना कम कर देंगे, ग्रंथ पढ़ना कम कर देंगे, कुछ ना कुछ हमारे वो होते हैं, बहाने होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा इस केस के अंदर कि बहाने हमारे कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ। क्योंकि जब मृत्यु निकट आएगी ना, जब मृत्यु सामने आएगी, उस टाइम आप बहाने नहीं मार सकते कि मैं अपने परिवार का ध्यान रख रहा था, या मैं पढ़ाई कर रहा था, या फिर मैं वो कर रहा था। नो मैटर, नो डाउट गलत नहीं है, आप कहिए जो कर रहे हो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये पता ना चाहिए अल्टीमेट कि मैं किस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ ना। तो हमें उस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट करना, प्रयास करना है जो परमानेंट है हमारे लाइफ में ना। शुड नॉट वर्क लाइक कैट एंड डॉग। इस सिचुएशन में इस तरीके से हम काम नहीं कर सकते बिल्कुल। दिस इज नॉट अ गुड ना। So in this material world, the conditioned soul are baffled by their activities and sometimes they are relieved from great difficulty. On the whole, the conditioned soul is never happy. He simply struggles for existence. Actually, his only business is to accept the spiritual master, the Guru. Through him, he must accept the lotus feet of Lord Shri Krishna. This is explained by Shri Chaitanya Mahaprabhu. Guru Krishna प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये देखते हैं भौतिक संसार में जीव आत्मा है ना भाई, बड़ा कष्ट पाता है। अगर देखो भी दिल्ली में देखते हैं, अभी मेट्रो में जाएंगे लोग ना, इस तरीके से कोच के जाते हैं। जैसे मुंबई के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि मुंबई के ट्रेन का उदाहरण दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है कि आप बस लोग बीच में आके खड़े हो जाइए और आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, लोग धक्का मार के अपने पहुंचा देंगे।
ठीक उसी तरीके से भक्तों का समाज भी होता है। भक्ति में अगर भक्तों के संग में अगर आ जाते हैं ना, तो हमें कुछ उतना करने की जरूरत नहीं, वो कर सकते हैं, करना जरूरी है, लेकिन अगर उनके बीच में भी अगर हम आके खड़े हुए ना, वो भी धक्का मार मार के हम भगवान का धाम लेके चल जाएंगे। इसमें बताया जा रहा, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं इस वर्ष के अंदर की, इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा है ना, बहुत कष्ट पाता है, अलग अलग तरह के कष्ट पाता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इसलिए 3 तरह के कलह होते हैं, कलेश होते हैं। ये सब पाने के बाद भी लेकिन जीवात्मा को लगता है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन हम कामयाब तो जरूर होंगे, ऐसा उस दिन आएगा जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, एक दिन बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत मजा आएगा मेरे को एक दिन। क्या ये बात सही होता है? कभी नहीं। एट द एंड ऑफ द लाइफ वो मर जाता, शरीर छूट जाता उसका, और मजा कौन लेता है? उसके परिवार वाले और उसके बाकी जितने चीजें हैं, है ना। इस केस में मैं आपको उदाहरण एक डिज्नी जो हम जानते हैं, डिज्नी लैंड जो है, उसका एक मालिक है, वो भाई उसने बहुत पैसे कमाए पूरे जीवन भर, और जो शरीर छोड़ने वाला था ना, तो वो साइंटिस्टों के पास गया, उसको उसने अपने पूरे जीवन भर की कमाई दे दी, और पता क्या बोला उनको? कहा कि ये सारे पैसे आप मेरे रख लो, जितने जीवन भर मैंने कमाया है, बहुत पैसे थे, और जिस दिन आपको पता चल जाए कि आत्मा को आप बना सकते हो ना, उस दिन आत्मा मेरे में डाल देना, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो मतलब क्या बोले ऐसे लोग, मतलब बेवकूफी वाली, बिल्कुल बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी ऐसे लोगों ने। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि एक बार शरीर छूटने के बाद आत्मा निकल जाती है, आत्मा बना नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर सोल्स, ये केवल गॉड कर सकते हैं, गॉड की क्रिएशन है वही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने दे दिया। तो ऐसे उदाहरण संसार में, भौतिक संसार में बहुत सारे हैं। फिर भी भौतिक संसार में जीवात्मा अलग अलग तरह के कष्ट पाती है। उसको कहा भी जाता है भाई तो प्रैक्टिकल काम करो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, वो सब कुछ नहीं रखते है ना। लेकिन यहाँ कमी क्या आती है? कमी सिर्फ एक चीज क्या आती है, वो क्या है? गुरु की कमी। व्यक्ति अपने जीवन में गुरु को नहीं स्वीकार करता, तो यही उस जीवात्मा का एक कर्तव्य बनता है कि हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए जीवन में ना। पारंपरिक एक संप्रदाय के अंतर्गत आते हुए हमें वी शुड चूज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो इस प्रकार से इफ यू डू लाइक दैट, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे, गुरु को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा भी गया है, क्या श्लोक है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड भटकने के बाद कोई भाग्यशाली एक जीवात्मा होगा जो गुरु और कृष्ण की कृपा पाएगा, है ना। ये वेरी वेरी हैवी स्टेटमेंट है। हम लेके इसको सस्ते में, चीप में ले लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ चीप थिंग, ये सब चीजें। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर का वी शुड अप्रोच, है ना। They try to gain release from these depends, but they cannot due to ignorance. For them, it is stated in the Vedic tad vijanartham sa guru tad vijanartham sa guru में अभिगच्छेत. When the living entity is lost in the forest of the material world, in the struggle for existence, his first business is to find a spiritual master, bona fide spiritual master, who is always engaged at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. After all, if he is at all eager to be relieved from the struggle for existence, he must find a bona fide guru and take instruction at his lotus feet. In this way, he can get out of the struggle. बताया जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जंगल में गुम हो गया, तो इसका सबसे पहला मोटो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसका होना चाहिए कि रास्ता ढूंढे कि बाहर कैसे निकले जंगल से, है ना। ठीक उसी तरह भौतिक संसार में कोई जीवात्मा अगर आगे फंस गई है, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य इसको एक क्वेश्चन करना अपने आप से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। ये वेदांत का सूत्र है, व्हाई आई हैव, हु एम आई, व्हाई हैव आई कम हियर, व्हाई आई एम सफरिंग सो मच, है ना। इस तरीके के 3 क्वेश्चन रख करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया, और मैं यहाँ पे कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, उस जीवात्मा का सबसे पहला जो कर्तव्य बनता है, उसका रूल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? ही फाइंड द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। वो एक बोनाफाइड पारंपरिक एक अपना एक गुरु चुने। क्यों चुने? ताकि वो उनके सारे कष्टों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं चुनेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। इस केस में अगर हम देख सकते हैं, वी कैन रिलेट टू दिस, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है। A great city, however, is like a great forest. Actually, city life is more dangerous than life in the forest. If one enters an unknown city without friend or shelter, living in that city is more difficult than living in a forest. There are many big cities all over the surface of the globe, and wherever one looks, he see the struggle for existence going on 24 hours a day. People rush about in cars going 70 and 80 miles an hour, constantly coming and going, and this set the scene of great struggle for existence. One has to rise early in the morning and travel in that car at break
knack, speed. There is always the danger of an incident, and one has to take great care. In this automobile, the living entity is full of anxiety, and his struggle is not at all auspicious. इस वर्ष में प्रभा जी बता रहे हैं कि जो एक्चुअली जो सिटी लाइफ के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हो, सिटी लाइफ का उदाहरण देते हुए प्रभा जी बताते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि सिटी लाइफ जंगल में गुम होना ज्यादा अच्छा है बजाय कि हम सिटी में गुम हो जाए। क्यों? क्योंकि जंगल में और गुम होंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। कह रहे सिटी लाइफ में तो गुम होना और मुश्किल है। तो सिटी लाइफ का गुम होना क्यों कहा है उन्होंने? कह रहे हैं कि सिटी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानता है, ना परिवार है, ना फ्रेंड है, ना दोस्त है, किसी को नहीं जानता, ऐसे चला गया, तो क्या होगा उस केस में? बंदा भटक जाएगा बिल्कुल। ग्लैमर इतना ज्यादा सिटी लाइफ में, तो हम देखते हैं आज के टाइम में जो भक्ति भी होती है सिटी लाइफ में लोग नहीं कर पाते। शहर का जो जीवन है उसमें भक्ति होना बहुत टफ है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बड़ी 24 घंटे काम करने में लगे हुए हैं, गाड़ी इधर से आ रही है उधर जा रही है, 70 माइल्स पर डे इधर उधर, बस यही काम रहेगा लोगों का। किस लिए? ओनली फॉर अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ सम पेपर विच कैन फुलफिल देयर बेली। लेकिन बेली कितना भरोगे भी तो देखो आप, कितना बेली भर सकते हो भी तो है ना चाहिए। बेली में उतना भरेंगे जितना आवश्यकता है, पेट उतना ही भरोगे ना जितना खाना हुआ है। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं यू विल नॉट डाई बाय अंडर ईटिंग बट यू विल डेफिनेटली डाई बाय ओवर ईटिंग। आप कम खा के तो नहीं मरोगे लेकिन ज्यादा खा के जरूर मर जाओगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल के जो लोग हैं समाज में जितने भी हैं ओबेसिटी का शिकार है, मोटापा लोगों का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? दैट्स द रीजन। ये एक्चुअली क्यों? हम प्रकृति के संसाधन जो हमें दिया गया है ना उसका जब हम दुरुपयोग करता है, जब जब जीवात्मा इस प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है ना, तब उसको फिर नुकसान होता है इन चीजों का ना। ऐसी चीज बड़ी खतरनाक होती है। एक एंगल में अगर चेक किया चीजें बड़ी खतरनाक होती है चीजों का। सो वी शुड गेट आउट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया एंड मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये सब चीज बड़ी डेंजरस है हमारे लिए। इसलिए देखते हैं भक्ति के अनुकूल फेवरेबल में कौन सी क्लाइमेट रहता है? वर्णाश्रम बहुत फेवरेबल रहता है। वर्णाश्रम वैदिक कल्चर जो हमारा पहले वैदिक कल्चर हुआ करता था वो भक्ति के बड़ा फेवरेबल हुआ करता था, बड़ा अनुकूल हुआ करता था। उस टाइम रोजमर्रा की जो चीजें हमारे मतलब मूलभूत जो चीजें होती थी, बेसिक नेसेसिटी चीजें होती थी, उनका हम उत्पादन खुद ही किया करते थे और बाकी टाइम भजन में दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या, बस पीस ऑफ पेपर जो है उसका उत्पादन बहुत मात्रा में करते हैं और बाकी चीजें छोड़ देते हैं। तो ये बहुत The human life is an opportunity to take shelter of the bona fide spiritual master, and through him, the Supreme Lord Krishna, Supreme Lord can be pleased. This Krishna consciousness movement has been started to give an opportunity to all the members of human society who are misled by foolish leaders. No one can get out of this struggle for existence, which is full of miseries, without accepting a pure devotee of the Lord. The material attempts change from one position to another, and no one actually gains relief from the struggle for existence. The only resort is the lotus feet of a bona fide spiritual master, and through him the lotus feet of Lord. तो इस वर्ष में प्रभा जी बार बार एक लाइन में बहुत कोट कर रहे हैं। क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य है, उसका धर्म बनता है, क्या बनता है कि गुरु ढूंढे गुरु ढूंढे। क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब शास्त्र में कोई भी चीज बार बार जितनी बार बोली जाती है ना तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक बार बोला चलो ठीक है जरूरी है, दो बार बोला महत्वपूर्ण है, तीन बार बोलना मतलब ये बहुत 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 करना ही है, बाकी कुछ सोचा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बता रहे हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि अगर हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढ लेंगे, पारंपरिक गुरु ढूंढ लेंगे जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हो, डिसाइप्लिक सक्सेशन के अंतर्गत आते हो, तो वो एक सोसाइटी को बेहतर बना पाएंगे। तो प्रभा जी कह रहे हैं दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्टार्टेड टू गिव व्हाट, टू गिव अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू ऑल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि हर व्यक्ति को एक एक पारंपरिक वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत एक गुरु मिल सके, और गुरु जब मिलेंगे तो उनको भक्ति की बीज मिलेगा, भक्ति की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन और प्रभुपाद जी साथ में ये भी कहते हैं कि इस वर्ष के अंदर की वो इसलिए किया गया है कि क्योंकि आज के टाइम पे तथाकथित जितने सारे गुरु है वो पाखंड मचा के कर रखे हैं और आम जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, परेशान करते हैं। तो इस केस में ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि आम जनता के पास इतना समय नहीं है कि चेक कर पाए, है ना। तो एक अथॉरिटी में, एक हायर लेवल पे सीनियर की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ये मोमेंट स्टार्ट किया गया है ताकि हर व्यक्ति गुरु के शरण में जा सके, और जब गुरु प्रसन्न होंगे, जब उनके शरण में जाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। इफ वी प्लीज आवर स्पिरिचुअल मास्टर देन कृष्णा विल बी प्लीज। ये तभी होगा एंड वी कैन टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ आवर श्री गुरु, एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु वी कैन गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा
एंड ऑल आवर वैष्णवाचार्य, है ना। ये सब चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वर्ष के अंदर ये चीज़ें कंक्लूजन में है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें कहीं गलत रास्ते में ना चले जाए, है ना, रास्ता कहीं खराब ना हो जाए। जो इसमें सिटी लाइफ के बारे में बताया गया उसमें हमें ध्यान देना है कि ये व्यक्ति के फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल है चीज़ें। तो जितना हो सके अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से मॉडिफाई करना है, इस तरीके से रेगुलेट करना है ताकि हमें समस्या ना इन चीज़ों में। अदरवाइज इट विल क्रिएट ओनली हैवोक ऑन सोसाइटी, और कुछ नहीं होगा इन चीज़ों, है ना। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।